A very good morning to the students of class 10. Welcome to the new chapter here. Today we are going to start a new chapter called as the Rise of Nationalism in Europe. It is the very first chapter of your history, and in this chapter we are going to study the story of democracy and the study of democracy which has been come forth for all the different countries, and what are the procedures and what are the sacrifices they have done in order to bring such kind of a nationhood of feeling or the nation state. So throughout the story we are going to discuss the conditions of the different countries like of Europe, like your Germany, your France, your Italy, okay, your Britain. So we are going to study all these chapters and see how the democracy has brought and how the nationalism has developed among the peoples of the respective countries. So dear students, do you know this fact that nationalism is a term or a concept which comes very slowly and steadily under the mind of an individual. This is because when a people, it is not been developed in a very few time. It takes a very long time in order to develop the feeling of a nationhood. Like suppose for an example, before 1947, when there were peoples or the revolutionary who was fighting for the independence of our country, and when this thought has come into them that they are the foreigners and they have come to rule our country and we have to fight against them in order to get our right. Okay, so the very time or that very time this thought was developed, that very time we can say is the development of a term which is called as your nationalism, which can be divided into two different parts. One is your nation and the other is your ism. So ism is a thought which develops under your mind, where you think that this is your country and you are supposed to enjoy the rights given and the privileges given in this country, and if somebody is obstructing you from enjoying such kind of a privileges, then you are supposed to raise your voice against it. Okay, so there was to understand this nationalism, there are very processes. There are examples which has been set forth in this textbook, but first we'll discuss about the essay of Ernest Renan. Ernest Renan was a French philosopher and also a lecturer. He has delivered his lecture in the University of Sorbonne in 1882. He has denied this fact in his essay, What is a Nation? That he has criticized those people who have said that nation is merely the combination of common language, race, religion or territory. Okay, he has criticized this concept. In fact, he has told during that time that a nation is a culmination of a long past of endeavor, sacrifice and devotion. It is very true also to have a common feeling or a brotherhood feeling. A time you need to give a space for yourself. So he's saying that a long past is being related for any nation to understand the concept of the nationalism. A heroic past, a great man, a glory, that is the social capital upon which one bases a national idea. This was his thought. We all remember our heroic leaders who have contributed and sacrificed their life without the thinking twice that what they are doing. Okay, so all these people's contributions makes us realize that for the noble cause they have sacrificed their life to bring peace in the society. To have a common glory
glories in the past. So if you are Indian, if you are European, if you are American, you are having the common glories of your past, to have a common will in the present. So what do you want your present to be and what you want your future to become. So this is a commonness which is going to be seen in the concept of nationalism. To have performed the great deed together, to wish to perform still more. He says that everybody should have an intense feeling of serving the nation. They should come together and they should wish to do something good for the nations. These are the essential conditions of being a people. So in order to have a common nationhood, these kind of a feeling should be within you. Okay, a nation is therefore a large scale solidarity. He has also told that a nation is a large scale solidarity, which means that all the peoples needs to understand and have a trust on each other. Okay, and they should maintain this cohesiveness and this integrity and the solidarity by sharing their views, by sharing the powers. Okay, so this is what he has said. He has denied that the nation cannot be called as a combination of a common language, race, religion, or a territory. In fact, he has said that the nation is the culmination of the long past of endeavors, sacrifice, and the devotion. So he was Ernest Renan, a philosopher, a French philosopher, who has given this essay in the University of Sorbonne in 1882. So dear students, I have just told you this because we need to understand the term of nationalism, we have to understand the term nation and nationhood. So as we have told you, nationalism has been framed by the help of the two words nation and ism. So in order to feel the feeling of a nationhood, you have to understand this, you have to develop the feeling of an ism. Okay, so ism is what? It is a thought. It helps you in developing the thought of the nationhood. There is another French artist named Frederic Serrurier, who has portrayed an utopian vision, who has portrayed his, you can say, his dream into a canvas. Okay, he has dreamt that after certain years, a society is going to be framed on the democratic principles. So this dream has been portrayed in his canvas. So let's see what is the dream and in which how many print he has printed this dream. So I have kept it on the blackboard that Frederic Serrurier was an artist, a French artist, who has drawn a canvas which is given in your figure number 1. Okay, drawn on the canvas this figure, where is he showing that there are different countries holding the different flag and marching towards the Statue of Liberty. And what does this symbolizes? We want to depict this into a different prints. So he has visualized his dreams in the series of 4 prints. Okay, so there was altogether 4 prints where he has symbolized his dreams. In the first print, he shows that the peoples of all ages from Europe and America are marching and paying homage to the Statue of Liberty. So they are showing in the picture also, you see that in the picture what they are saying, that the peoples of all ages, whether they are old or the young peoples, they are marching towards the Statue of Liberty and they are paying homage to the Statue of Liberty. Homage means आप उनके सामने श्रद्धांजलि दे रहे हैं. It means that all country will be ruled on the democratic principle. The Statue of Liberty means what? Liberty symbolizes your equality, liberty in equality, liberty in thinking, liberty in the political rights. So all these liberty are supposed to be given to all the different countries who is marching towards the Statue of Liberty and they are paying their homage. In the second painting, he has depicted that the second print of the series shows that the Statue of Liberty is personified as a female figure.
पर्सनिफिकेशंस मतलब कहा जाता है मानवीकरण। तो मानवीकरण आप कब कराते हैं, जब आप कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म देना चाहते हैं तो उसको मानवीकरण कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं या फिर बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने कंपोज किया, तो वो कोई ना कोई चीज़ को पर्सनिफाई करते हैं। जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पर्सनिफाई किया गया है, जैसे कि आप बाद में देखेंगे द जर्मिनिया, आपने फिर देखना है द एलिग्री विच इज़ कॉल्ड एज, एक है आपका जर्मेनिया, दूसरा है आपका मैरियना, दैट इज़ एन एलिग्री ऑफ योर फ्रांस। और आप अपना कंट्री का भी ले सकते हैं, दैट इज़ योर भारत माता। तो इन सभी को पर्सनिफाई किया गया है विद अ ह्यूमन इमेज। और ज़्यादातर यहाँ पे ह्यूमन इमेज यहाँ पे लेडीज़ को रखा गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि मेन के मुकाबले लेडीज़ बहुत ज़्यादा काइंडनेस रखती है कोई चीज़ को लेके। सो दैट इज़ वाई मैनी peoples and many historians and many scholars and many artists have personified the things by keeping the women in their sight. Okay. So in the second print, he shows that the Statue of Liberty is personified by the female figure, and she holds two different things in her hand. और वो अपने हाथ में दो चीज़ पकड़ के रखी है। एक हाथ में उन्होंने पकड़ा है एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जो आपको राह दिखाती है, ज्ञान की तरफ आपको लेके जाती है, और दूसरा है द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ओके, विच मीन्स वेयर देयर इज अ रूल टू फॉलो और गिव इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक नियम के अनुसार चलता है, और सभी लोगों को अगर डेमोक्रेसी को फॉलो करना है तो दे हैव टू गो थ्रू द सम चार्टर्स, ओके। सो दिस इज व्हाट ही हैज सिंबलाइज्ड इन द सेकंड प्रिंट। In the third print of the series, shows that on the earth lies the shattered remains of the symbols of absolutes. तो एब्सोल्यूट क्या है? तो एब्सोल्यूट उस समय का मोनार्किकल गवर्नमेंट है जिसका दबदबा रहता था, है ना, और वो सारे लोगों को अपने अंडर में कंट्रोल करके रखते थे, ठीक है। उनका एम्पायर रहता था, उनको क्वेश्चनेबल कोई नहीं कर सकते थे, वो जैसे अपने सरकार को चलाना चाहे वैसे चला सकते थे। तो डेमोक्रेसी में तो ऐसे नहीं हो सकता है, डेमोक्रेसी में पीपल्स की विल ज़्यादा मायने हैं। तो जब इस तरह का थॉट या एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस आया तो लोगों को इस पर दोबारा से सोचने लगा कि क्या हमारा राइट, हमारा प्रिविलेजेस इस तरह के सरकार में हम लोगों को मिल सकती है, क्या हमें सेल्फ एस्टीम मिल सकती है। तो बहुत जगह यूरोप में इस बात के लिए लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, और अब एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पे सभी ने एकजुट होकर एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन को मतलब धरती पर मिटा दिया है। मतलब इट हैज़ वाइप्ड आउट इट्स नेम एंड फेम, एंड नाउ इट इज़ लाइंग शैटर्ड ऑन द ग्राउंड। और अब वो नीचे गिरा हुआ है और इसको अब कोई मानने को तैयार नहीं है। जिस समय उनकी दबदबा थी, अब ये दबदबा कम हो गया है। अब लोग मोनार्किकल सिस्टम से अलग होके अब डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ने को जा रहे थे। ऐसा सोचा था किसने? सरोरियो ने। इस चीज़ को इन्होंने अपने कैनवस में उतारा और ये चीज़ को दर्शाने की कोशिश की दैट ऑन द अर्थ, ज़मीन पर कौन सा सिस्टम लाया हुआ है? मोनार्किकल गवर्नमेंट निस्त नाबूद होके पड़ा हुआ है। इट मीन्स दैट वंस अपॉन अ टाइम दिस सेंट्रलाइज, मिलिटराइज एंड रिप्रेसिव गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन स्टेटस। एक समय था कि इसकी एक स्टेटस थी, एक पहचान थी, बट नाउ इट हैज़ डिसमेंटल्ड एंड हैड लॉट्स ऑफ स्टेटस एंड पीपल हैज़ नो रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने पीपल को इतना एक्सप्लॉइट किया कि अब पीपल के दिलों में इसके लिए कोई जगह नहीं हुआ, ठीक है। चौथा प्रिंट में उन्होंने क्या दर्शाया? द फोर्थ प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द उटोपियन विजन।
तो द टर्म यूटोपियन मतलब होता है अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल टू बी एग्जिस्टेड। मतलब अगर हम एग्जाम्पल में ले लें कि इंडिया कभी करप्शन फ्री हो सकता है क्या, तो ये एक सिर्फ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या ऐसा हो सकता है। तो यूटोपियन विजन इसको कहा जाता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा सोच है कि कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ये चीज़ दर्शाने की कोशिश की जो कि दिखने में आज नहीं लग रही थी। सो अकॉर्डिंग टू हिम द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। एक समय आएगा कि सारे जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी अपनी एक पहचान होगी, उनका एक फ्लैग होगा, उनका एक कॉस्ट्यूम होगा और वो सबसे अलग होगा, उनकी टेरिटरीज अलग होगी। क्योंकि अभी तो जो समय है उसमें सिर्फ आपका कौन सा 2 देश दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड। बाकी सभी कोई न कोई किंगडम या एम्पायर के अंतर्गत ही अपने आप को मान रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिरोरियो ने ये बात को दर्शाया कि एक समय आएगा जब सभी को अपनी आज़ादी मिल जाएगी। तो ये बात जो सिरोरियो ने कहा उस समय 2 स्टेट के लिए लागू नहीं होता क्योंकि इनके पास ऑलरेडी उस समय लिबर्टी थी। सो लीडिंग द प्रोसेसन एंड पासिंग द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पहले में आपका यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड है। बाय दिस टाइम उनको अपना नेशनहुड का दर्जा मिल गया था, लोगों को समझ में आ गया था उनके नेशनलिज्म के बारे में और उनका कर्तव्य अपने देश के प्रति। ठीक है। फ्रांस वॉज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन था? फ्रांस। फ्रांस का भी अपना तिरंगा लेके वो अपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहा था, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने भी अपनी डेमोक्रेसी के लिए अभियान स्टार्ट कर दिया। बहुत जल्दी उनको भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पे अपने देश को चलाना मिलेगा। बिसाइड्स दिस जितने भी कंट्रीज थे, जैसे कि आपके थे जर्मनी with the flag of black, red and golden flag, Austria, the Kingdom of 2 Sicily, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia were not created or existed as a united nation. ये सारे जो प्रोसेशन की तरफ मार्च कर रहे थे, इन सभी को अभी तक आज़ादी नहीं मिली थी। ओके, इसका कहने का मतलब क्या था? इनको अभी भी लिबर्टी मिलना बाकी था। But they had an hope to unify the country into a nation state under a democratic constitution. लेकिन where there is a hope there is a way, isn't it? लेकिन उनके मन में उनके ये भावना थी कि एक दिन हमारा भी देश आज़ाद होगा और हम भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पे अपने संविधान को गठन करेंगे और अपने देश को सुचारू ढंग से चला पाएंगे। ठीक है, ये भावना उनके अंदर थी। इन दिस विजन ही हैज़ ऑल्सो सीन दैट, यहाँ पर एक और चित्र दिखाया गया है, आप देखेंगे इस कैनवस में कि ऊपर से जितने भी एंजल्स थे, जितने भी परी हैं, एंजल्स हैं, आपके जो देवता है, ये सब इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि जब देवता ने लोगों को डिवाइड नहीं किया तो हम जो आम आदमी है, द लिविंग क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड, हम कौन होते लोगों को डिवाइड करने वाले और उनको अपने अंडर रखने के लिए, है ना? क्योंकि गॉड तो किसी को अपने अंडर नहीं रखा हुआ है, गॉड के अंडर सब है और सब बराबर है। तो उन्होंने कहा कि इन हिज विजन ही हैज़ ऑल्सो सीन फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। ये दृश्य को सभी लोग देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये दृश्य सिंबलाइज कर रही है किसकी तरफ? फ्रेटर्निटी की तरफ, अमॉन्ग द नेशंस ऑफ दी वो समृद्धि की तरफ, हम लोग भाईचारा की तरफ ये दृश्य अपील कर रही है। तो इस तरह का जो यूटोपियन विजन है फ्रेडरिक सिरोरियो के द्वारा जिन्होंने दर्शाया है अपनी पेंटिंग में, ये सारा चीज़ एक एग्जाम्पल बन के आया है कि यूरोप में नेशनलिज्म को लाने में।
तो वी विल सी कि यहाँ पे अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से नेशनलिज्म आई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रांस की बात करते हैं। तो फ्रांस में आखिर क्या कंडीशन था, किस तरह से लुई 16 को हटाया गया और कैसे लोग एकजुट होके डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट को रिप्लेस करके एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पे संविधान को गठन किए। तो फर्स्ट केस स्टडी वी विल गो विद द फ्रांस। So the first country in Europe which have practiced the nationalism and where the people have come together to fight against the absolute institution was France. So the first case study we will do with the France. Let's see what we have on the board for the France. So that the first clear expression of nationalism came in the French Revolution in 1789. So it was the time of 1789 when the people have revolted against the King Louis XVI, or you can say against the absolute monarch to bring the democratic government. So there were many means they have gone through in order to bring this. Secondly, it has been said that France was under the rule of an absolute monarch. We all know that France was under the king of Louis XVI, who belonged from the Bourbon family, and he had ruled in such a manner which the people were despotic regarding him and his empire. People did not appreciate the way he has ruled and the way he has increased the taxes for the third state people. Okay, I presume you are knowing all this fact because we have studied the French Revolution in class 9. The third point, it says that the political and the constitutional changes that came in the wake of the French Revolution, it is saying that the political changes came, which means when the monarchical system was abdicated and the General Assembly was formed. Okay, so that is your political changes. The constitutional has also been written there. It was amended with the help of the Estate General. The constitution was amended, which has brought many rights, that is a declaration of rights for man and woman, which we have studied in the French Revolution, was mentioned in the preamble of the constitution. It has brought many changes during the French revolutions and led to the transfer of sovereignty from the monarchical to your French, to the body of the French citizens. It means to say here that is republic. Okay. Once again, I like to explain this point. So the political and the constitutional changes has come during the French Revolution, okay, and it has transferred the power from the monarch to the common citizens. Which means that the sovereignty, actually the term sovereignty you have to understand here, when you are able to give a judgments within your country and nobody, foreigners are there to rule you, so that means that your sovereignty is with you. So before 1789, this sovereignty lied in the hands of the king, but after 1789, this sovereignty has come to the common citizen, that is your French citizens. Okay. So to bring this change, they have to sacrifice a lot of things. Okay, we will read one by one. Then the third point, what does it say? Is the revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. At the end of the revolution, what was generalized, that it was only the people. It was only the people who is going to constitute the nation or shape its destiny. Okay, no one authority will be able to change any law without the recommendation of the common people. Okay, so this was the drastic change which was brought after the French Revolution. You can imagine a society which was divided into 3 states, and the first 2 states were enjoying all the privileges and power, and the third states were only meant for giving the taxes, and all the taxes, direct and indirect, was taken from that state only. So those people, conditions would be terribly bad. So just imagine
when these rights were given to those people, wouldn't those people be happy? Yes, definitely they'll be happy, because the things which they did not get, the divine right which they did not get right from the beginning, now the time has come for them to enjoy these kind of rights. Okay. So to bring this soothing condition was not very easy. They had to go with various measures and practices that would create a sense of collective identity amongst the French people. So what are the different measures which has brought and which has helped to culminate this idea? Then the first is what? The idea of la patrie and la citoyenne. So as we all know that the France society was divided into three, and the peoples who were getting the privileges was from the nobles, nobility, the nobles, as well as from the clergy class. Okay, these peoples only were getting the right of all the privileges, and they did not have to pay any taxes. So now, when the law has come up for everybody, and it has considered to be that everybody is equal before the law, so all the peoples are now given the status of a citizens. Nobody is a noble, clergy, or a third state members. Okay, they are simply only the citizen. So whether you are rich or poor, or you are from the royal family, now one privilege has only been given to all the citizens, that is getting the membership of the citizen of the France country. Okay, and after that they are having the common thought regarding their nationhood, and जिस तरह से हम अपने धरती को धरती माता कहते हैं, उन्होंने अपने लैंड को फादरलैंड से संबोधित करने की कोशिश की, और इस फादरलैंड के हम क्या हैं? बच्चे हैं. ठीक है, तो इसमें जब फादर अपने बच्चों के प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं, तो फिर एक ही लोग एक ही जगह में रह के अलग अलग स्टेटस क्यों एंटरटेन करेंगे? इसीलिए ये फीलिंग सबसे पहले आई ला पैट्री का, दैट इज योर फादरलैंड, एंड ला सिटोयन का, विच एम्फसाइज ऑन द सिटीजनशिप. और ये चीज़ और भी बताता है कि ये इक्वल राइट्स भी संबोधित कर रहे थे जब कॉन्स्टिट्यूशन का गठन हुआ था, कि सभी को चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को बराबर राइट दिया जाएगा. ठीक. Coming to the second point, a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the formal royal standard. तो जैसे कि मैंने भी कहा था कि all the different many different provinces and the different states, they had their different kings. Okay, and जैसे कि हम लोग ने हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में पढ़ा है कि सब किसी न किसी किंगडम के अंदर में है, अधीन में है, और उनका एक रॉयल राजा है, और उसके बाद उसका रॉयल एम्पायर का एक नेशनल एक अलग अलग फ्लैग है. तो सब अपने राजा के प्रति रॉयल्टी शो कर रहे थे. तो अब ये चीज़ जो फ्रांस में दिख रही थी, ये लॉयल्टी जो अपने राजा को दिखाया जाता था, उन्हीं का जो फ्लैग है उनको संबोधित करके उसको हटा के अब तिरंगा लिया गया है. उनका कलर है ब्लू, वाइट एंड रेड. तो ये कलर को सिंबलाइज किया गया है, और इसको पूरे नेशन में मानने के लिए इसको कन्वर्ट किया गया है एज अ नेशनल फ्लैग. ओके, तो ये भी है. अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्रेज द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड. तीसरा क्या है? तीसरा है हम लोग यही लिख लेते हैं द एस्टेट जनरल. पहले कैसे एस्टेट जनरल बना था? तो हम लोगों ने देखा था वर्सीला में, इन द हॉल ऑफ वर्सीला, जब उनका प्रपोजल को किंग लुइस 16 ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, तो वो वॉकआउट करके कहाँ चले गए? टेनिस कोर्ट में. वहाँ जाके उन्होंने एक जनरल असेंबली का गठन किया, जहाँ पर उन्होंने शपथ लिया कि वो वहाँ तब तक नहीं हिलेंगे जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं कर दिए. ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ तो एस्टेट जनरल क्रिएट हुए. तो तीसरा क्या है? द एस्टेट जनरल. द एस्टेट जनरल.
तो यही स्टेट जनरल का निर्माण हुआ था टेनिस कोर्ट में. was elected by the body of active citizens. by the body of active citizens. अब ये active citizens कौन थे? by the body of active citizens and renamed the National Assembly. तो स्टेट जनरल को गठित किया था कौन? एक्टिव सिटीजन्स. तो एक्टिव सिटीजन्स यहाँ पे कौन थे? वो लोग जो ज़्यादा टैक्स देते थे और जो मेल मेंबर से बिलोंग करते थे, उन्होंने ही इन स्टेट जनरल को इलेक्ट किया, है ना. तो जब स्टेट जनरल यहाँ पर इलेक्ट हो गए तो क्या होगा? अब हमारा ये एब्सोल्यूट मोनार्क का जो सिस्टम था फ्रांस में, वो अब नहीं होगा. अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होगा. मतलब मोनार्किकल पावर के मोनार्क का पावर को चेक किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से. और कौन चेक करेगा? ये लोग, स्टेट जनरल. ओके, तो ये भी एक था. नेक्स्ट क्या था? न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड. नए नए गाना, है ना, जैसे कि मर्सीला आप देखेंगे जो कि वॉलंटियर्स के द्वारा गाया गया जब वो लड़ाई के मैदान में उतरे थे. तो उन्होंने एक गाना, रॉबर्ट डी, जिन्होंने एक गाना कंपोज किया था, उनका नाम था रॉबर्ट डी something. I'm just forgetting that name. It is written in your book. Please refer to that. And उन्होंने ये गाना मर्सीला के बारे में कंपोज किया था और लोग जो वहाँ पे लड़ने जा रहे थे उन्होंने ये गाना को गाया. ठीक है. So they have composed the new hymns. New hymns were composed. New hymns were composed. ठीक है. Were composed. And oaths were taken, शपथ लिया जा रहा था. oaths were taken, and martyrs were commemorated. And martyrs were, जो आदमी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, उनको याद किया जा रहा था और उन पर श्रद्धांजलि चढ़ाई जा रही थी. ठीक है, इसका मतलब यही है. ओके, इन द ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, नेम ऑफ नेशन. ये चौथा पॉइंट है. तो न्यू हिम्स गाना को कंपोज किया जा रहा था और सब शपथ ले रहे थे. उसके बाद जितने भी लोग वीरगति को प्राप्त हो गए उन सभी को श्रद्धांजलि दिया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने एक सही रीजन के लिए अपने जीवन को त्यागा है. और वो सही रीजन क्या है? अपने देश के प्रति एक भावना. और उन्होंने क्या क्या किया ये चीज़ लाने में? तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव का सिस्टम का गठन हुआ. सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का गठन हुआ, जहाँ पे एक ही जगह was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territories. और सभी लोगों के लिए एक ही जगह से नियम कानून बनते थे और सभी को वो चीज़ को फॉलो करना था. Then it had internal custom duties and dues. Okay, छठा क्या है? Internal custom duties. Internal custom duties क्या हुआ? मतलब अलग अगर आप व्यापार करते तो उसमें अलग अलग जगह आपको टैक्स देना पड़ता. तो इसीलिए इसको कहा गया कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश्ड. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय ये सब चीज़ पर बातचीत हुई कि जो भी कस्टम ड्यूटीज़ हैं जिसके कारण हमारे व्यापार करने में बहुत कठिनाई होती है, सो प्लीज़ रिमूव ऑल दिस कस्टम ड्यूटीज़. एंड besides this, a single currency and weights and measures was included. Okay, a single currency and weights and measures was adopted.
We can write this also, abolished and a uniform system of weights and measure was adopted. Weights and measures was adopted. ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट चेंजेस क्या था, रीजनल डायलेक्ट्स को हटा दिया गया। जो भी रीजनल डायलेक्ट्स थे, तो लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है नेशनलिज्म को डेवलप करने में। तो यहाँ पे रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को रीजनल डायलेक्ट्स was discouraged. Okay, and France was spoken. Okay, in Paris, the capital of France. तो ये सारे चेंजेस देखने को मिला। तो एक बार फिर से देख ले, फ्रांस में नेशनलिज्म को लाने के लिए लोगों ने क्या क्या किया। तो पहला लोगों ने क्या किया कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री और ला सिटीजन को डेवलप किया। मतलब यहाँ पे कोई भी एक स्पेशल प्रिविलेज के साथ नहीं है, कोई किसी के पास डिवाइन लॉ नहीं है। सभी जब नेचर ने ये चीज़ नहीं दिया है बांट के, तो हम लोग क्यों आपस में बटे हुए रहे। सो एवरीबडी इज अ सिटीजन एंड एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। दूसरा कहता है न्यू फ्रेंच फ्लैग। आपको कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने देश को ही रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक सिंबल की ज़रूरत है। तो फ्लैग एक बहुत बड़ा सिंबल है जिसके आधार पे आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनका फ्लैग का कलर क्या है, ब्लू, व्हाइट एंड रेड। ओके, सो द एस्टेट थर्ड में क्या है, द एस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन। तो पहले जितने भी लॉज थे वो किसके द्वारा पास होते थे, लुइस 16 या फिर क्लेयर्जी या फिर नोबल्स के द्वारा। दो थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स भी उसमें पार्टिसिपेट लेते थे, लेकिन उनका पार्टिसिपेट लेना या ना लेना बराबर था। सो दैट इज़ वाई उसको खारिज करके एक नया संविधान को लाने की कोशिश की, जिसमें एस्टेट जनरल को एक्टिव बनाया गया। और इनको चुनने वाले कौन थे, एक्टिव सिटीजन्स, वो लोग जो कि टैक्स ज़्यादा देते थे और जो कि मेल मेंबर थे। यहाँ पर फिर नेशनलिज्म को लाने में और क्या मदद हुई, तो हिम्स, नए नए गाना को कंपोज करना स्टार्ट किया ना। जो लोग शहीद हो गए उनको कमेमोरेट करना स्टार्ट हुआ, उनको श्रद्धांजलि देना स्टार्ट किया, उनकी ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट हो गई। और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव का गठन हुआ ताकि नियम किसी के लिए कोई क्योस नहीं लाए। अलग अलग लोगों के लिए बहुत क्योस क्रिएट कर सकता है, इसलिए सभी लोगों के लिए एक लॉ और सभी को लॉ के अंतर्गत रखना है। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, जिसके कारण हमारा व्यापार बहुत डिफिकल्ट होती थी, क्योंकि हर एक स्टेज पे टैक्स देना बहुत मुश्किल हो जाता था और प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता था। तो ऐसा केस ना हो, इसीलिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को डाला गया, एडॉप्ट किया गया यूनिवर्सली ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स वाज डिस्करेज, अलग अलग भाषाओं को यहाँ पे डिस्करेज किया गया। द कॉमन लैंग्वेज विच वाज यूज्ड दैट वाज योर फ्रेंच। ओके, तो इसको पॉपुलराइज किया एंड इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस एंड इट बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशंस। ओके, तो ये सारी चीज़ हुई है ना, तब हमारा नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है लोगों के दिलों के अंदर डेवलप हुई। तो इसको लाने में सबसे पहले किसने महत्वपूर्ण भूमिका अपनाया किया, तो इसको लाने में सबसे पहले द मिडिल क्लास पीपल। अब ये मिडिल क्लास पीपल कौन है, इसको हम लोग इंटेलेक्चुअल्स भी कह सकते हैं। वो वैसे लोग जो कि पढ़े लिखे हैं और जिन्होंने अपने सोच से ये चेंजेस लाने में सफल हुए। तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ना को ऐसा लगा कि हम अगर अपनी राइट के बारे में लड़ेंगे सही ढंग से, तो हमें निश्चित रूप से एक डेमोक्रेटिक
फेस की तरफ हम अपने देश को ले जा सकते हैं। तो इस चीज़ को लाने में बहुत सीक्रेट सोसाइटीज़ का गठन हुआ, बहुत रेवोल्यूशनरी ने सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया। इसमें से सबसे उम्दा में एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप है जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। इस जैकोबिन क्लब में वैसे ही लोग थे जो कि बेसिकली पुअर थे या फिर मिडिल ऑर्डर्स के थे, जैसे कि आपके शॉपकीपर्स, आपके डेली वर्कर्स, आपके द लैंडलेस लेबरर्स, ये सारे लोगों ने एक क्लब बनाया जिनका नाम था जैकोबिन क्लब। इसके जो लीडर थे वो मैक्सिमिलियन रॉबर्सबर्ग थे, जिनके माध्यम से, जिनके लीडरशिप के बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी, आई मीन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको हम मोनार्किकल सिस्टम कहते हैं, बाद में डेमोक्रेटिक सिस्टम में तब्दील होती है, फिर बाद में ये धीरे धीरे फिर से मिलिट्री ग्रुप में आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जो जैकोबियन क्लब्स के जो मेंबर्स थे उनके योगदान से ना, देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज ने अलग अलग उन्होंने अपना संगठन बना लिया और एक फ्रेंच आर्मीज की तरह वो चारों तरफ फैल गए। हॉलैंड में चले गए, बेल्जियम में चले गए, स्विट्ज़रलैंड में चले गए और बहुत दूर तक इटली में भी चले गए ना 1790s। और विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द नेशनलिज्म्स आइडिया अब्रॉड। और इन्हीं के माध्यम से अलग अलग देशों में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को भी डेवलप किया गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेपोलियन के आने के बाद आखिर क्या चेंजेस देखने को मिला फ्रांस में। तो नेपोलियन बोनापार्ट वॉज अ वेरी बिग वॉरियर। ओके, तो इन्होंने क्या किया, ही हैज़ दो लीडेड द फ्रांस in his own way, and he is indeed told to be as a person who has destroyed the democracy in France. Okay, ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने डेमोक्रेसी को जो आ चुकी थी फ्रांस में उसको उन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है, अपने अपने जीवन काल में, अपने रिजाइन्स में। बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जब उन्होंने चेंजेस लेके आया है ना, तो बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने बहुत ड्रास्टिक लेवल पे चेंजेस लेके आए, जिसके माध्यम से बहुत सारा जो हमारा इकोनॉमिक है वो अच्छा हो गया एंड द पीपल वर एबल टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये इन्होंने ये चेंजेस जो लेके आए वो आखिर क्या क्या चेंजेस थे, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो इस चेंजेस को बेसिकली हम लोग द सिविल कोड ऑफ 1804 कह सकते हैं या फिर हम लोग नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं। ओके, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट। तो इस चेंजेस में उन्होंने सबसे पहले क्या लाया, दिस कोड रिमूव ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो भी प्रिविलेजेस फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट को दिया जाता ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जैसे कि टैक्स नहीं देना, लैंड को जितना चाहे वो अपने अंडर में रख सकना, रिलीजियस टैक्स वसूल करना, ये सारे जो थे ये चीज़ को उन्होंने समाप्त कर दिया। ओके, सेकेंड थिंग वाज व्हाट, ही एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उन्होंने सभी के लिए एक ही नियम, यूनिवर्सली उन्हें एक नियम लागू किया जिसे यूनिवर्सली सभी लोगों ने फॉलो किया। ओके, नोबडी इज हाई और लो, एवरीबडी इज द सिटीजन हु हैज टू फॉलो सर्टेन लॉज। थर्ड उन्होंने क्या, ही सिक्योर्ड द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जो भी संपत्ति है वो किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी और ये निजी संपत्ति नहीं होगी, इसीलिए प्रॉपर्टी पर अपना सिकंजा बढ़ाया। इट सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। जैसे कि कुछ स्टेट्स है, जैसे कि इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड जो फ्रांस के अधीन थे, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ना, उसको जो कॉम्प्लेक्स है उसको और सिंपल वे में उन्होंने किया। और उन्होंने वहाँ का जो फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्म जो चल रही थी, जहाँ पे लॉर्ड और सर्व का जो एक ट्रेंड चल रहा था, उस सिस्टम को उन्होंने हटा दिया और पेजेंट्स को वहाँ से रिहा कर दिया। उनके जितने भी मिनोरियल ड्यूज हैं वो सभी को उन्होंने माफ़ कर दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा चेंजेस उन्होंने लिया, जिसमें सारे लोकल
पीपल्स बहुत खुश हो गए. ओके, रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट द जैकोबियन क्लब. तो वैसे लोग जो कि पहले किसी के अंडर काम करते थे उन सभी को बहुत राहत मिली. आफ्टर दैट उन्होंने बहुत सारा चेंजेस इकोनॉमिक फील्ड में भी लेके आए, जैसे कि he removed the restrictions on the guild. Remember the guild are the group of the person who used to oppose restriction for the other peoples to come in the business area. So in order to remove the competition ये ऐसे किया जाता. तो इन्होंने ये जो guild system था इसी को हटा दिया. There was no any guild system to restrict any kind of a business. एंड सेकेंड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस वर इम्प्रूव, क्योंकि व्यापार तभी बढ़ेगी जब आपके पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सही ढंग से होंगे, और बहुत कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए ये, ताकि आप हर एरिया को कनेक्ट कर सकें. ये इनके दिमाग में था, तो इन्होंने ये चीज़ पर फोकस किया. ही स्टैंडर्डाइज द वेट्स एंड मेजर्स. ये पहले भी बात किया गया था स्टेट जनरल में कि वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया, करेंसी को एक किया गया, ताकि लोगों को इकोनॉमिक बढ़ाने में कोई दिक्कत या असुविधा न हो. कॉमन नेशनल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया टू फैसिलिटेट द मूवमेंट. ये सारा जो चेंजेस लेके आए थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, क्योंकि फ्रांस तभी समृद्ध हो सकता है जब उसकी बिजनेस बढ़ सकती है एक जगह से दूसरी जगह. तो ये सारे चीज़ें इसलिए कराया गया. लेकिन इतने आफ्टर ब्रिंगिंग सो मच ऑफ चेंजेस, स्टिल ना नेपोलियन वॉज नॉट एबल टू विन द हार्ट ऑफ द पीपल. वाई? लेट्स सी. इट इज़ बीन सेड दैट इन द एरियाज कॉन्क्वर्ड एंड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस वॉज बेसिकली मिक्सड. ना जो उन्होंने अपने से आक्रमण किया जो स्टेट के तरफ और उसको अपने अंडर लेके आए, ये सारे लोग में दो तरह की भावना थी. एक ये लोग खुश भी थे और दूसरे तरफ असंतोष भी थे. तो जैसे कि इनिशियली इन मैनी प्लेसेस जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल, मेंस, मिलान एंड वार्सो, द फ्रेंच आर्मीज वेर वेलकम एज द हार्बरिंगर्स ऑफ लिबर्टी. मसीहा बनाया गया उनको, लिबर्टी का आज़ादी देने वाले लोग. और कुछ ही दिन बाद ना बट द इनिशियल एंथुजियाज्म वे सून टर्न इनटू हॉस्टाइल. और कुछ ही दिन बाद वो उनके दुश्मन बन गए. तो क्या वजह थी ये दुश्मन बनने के लिए? तो वजह क्या थी? एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड. वो यूँ था कि जो नया चेंजेस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ये जो लिखा गया था, ये बेसिकली सिर्फ पेपर पर ही था, लेकिन इसको धरातल पे लाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, या फिर बहुत लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चल रहे हैं. ओके, तो इसके कारण लोगों में असंतुष्टि थी. सो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम. जिस तरह का पॉलिटिकल फ्रीडम कहा गया लोगों को मिलेगी आएगी, उस तरह का व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिखा गया. अभी भी टैक्सेशन की समस्या थी, सेंसरशिप का राइट लोगों को नहीं दिया गया था. अपने हिसाब से वो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या फिर मैसेजेस नहीं छाप सकते थे. फोर्स कॉन्स्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज. जो लोग लड़ाई करते थे तो उनमें अगर आर्मीज़ की कमी हो जाती थी तो उनको फोर्सिबली रिक्रूटमेंट किया जाता था, जिसके कारण वो उनके खिलाफ थे. Required to conquer the rest of the Europe, all seem to outweigh the advantages of the administration. ये सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, ये सब चीज़ पानी में मिला दिया था जो भी चेंजेस वो लेके आना चाहे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस फ्रांस में. Okay, so this type of the mixed concept was there for Napoleon Bonaparte, who tried to bring good fortune for the France, but he was unable in bringing that because he had to face a lots of criticism. It has also been believed that he has destroyed the democracy, but we cannot deny the fact that he has a lot contributed in the development of the France society. So this was the first case study, and we have seen that the people has gone through a various means in order to develop the thought of an ism in France, and what were the process of nationalism
that the people or different peoples were having in their heart, and what was the contribution of the Napoleon Bonaparte in order to bring the changes. In the next video, we will see the making of nationalism in Europe, and with that we will study the peoples who belong from the conservative and the peoples who belong from the liberal point of view. Okay, so till next, be safe and sound at home, and good luck for your upcoming examinations.